everyone, I am Smriti Sinha and welcome back to my channel Science Zone. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and let's get started. If you have not watched my previous videos on solid state and then coordination compound, you can go on the I button above and click on it. So, in this lecture, we are going to study halogen derivatives, that is chapter 10 from Maharashtra State Board syllabus. And this is one of the important topic, that is halogen derivative. I have already started with this topic and I have done already 2 to 3 videos on this topic. So those points which I have already covered are classification of halogen derivatives, nomenclature of halogen derivatives, methods of preparation of alkyl halides, physical properties, optical isomerism in halogen derivatives, and we have done with the half part of chemical properties and we are going to continue with this same. This is very important part, that is chemical properties. So, I have in the last video told you about substitution reaction. Correct? So, the substitution reaction was the reaction in which a atom or group of atom is replaced, you have to remember the word replaced, by a atom or another group of atom. So, that is called as substitution reaction. Today, we are going to learn about elimination reaction. So, as the word says, you have to eliminate something. You have to remove something from your reactant, and that is the elimination reaction. So, the first reaction that we are going to study in elimination is dehydrohalogenation. So, what is dehydrohalogenation? So, the word says D means removal of hydrogen and halogen atom. We are going to study elimination in alkyl halide. So, we need to remove hydrogen and halogen from this molecule. So, that is called as dehydrohalogenation. So, what the condition of the reactant should be? So, इस reaction में reactant के पास एक बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है. So, what is बीटा कार्बन? जिस कार्बन को हैलाइड अटैच होता है, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से भी कोई भी जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो है आपका बीटा कार्बन. सो हैलोजन अटैच वाला कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है दैट इज द बीटा हाइड्रोजन. ओके, सो बीटा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन attached to beta carbon. So, for the elimination reaction in alkyl halide, you need to have at least one beta hydrogen, and then you need to boil this alkyl halide having beta hydrogen with alcoholic KOH. किसके साथ boil करना है आपको? Basic solution, that is alcoholic KOH. और ये alcoholic KOH हमें हेल्प करता है हाइड्रोजन रिमूवल फ्रॉम बीटा कार्बन से और हैलोजन रिमूवल अल्फा कार्बन से. ठीक है, तो हमारे इसमें से क्या क्या एलिमिनेट होगा? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन, और इसलिए इसे कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ टेक प्लेस. सो बेस विल abstract the hydrogen, so it will become BH. फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ रही है तो हमें उसे नॉर्मल करना है, तो इसलिए हम हैलोजन निकाल देंगे और ये बन जाएगा X माइनस. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन. Why this is called as beta elimination?
The reason behind this is that you lose beta hydrogen and therefore it is called as beta elimination 2. So this is about dehydrohalogenation, which leads you to formation of alkene. So dehydrohalogenation is a elimination reaction जिसमें आपका अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में, ठीक है. बट ये अल्कीन का फॉर्मेशन इतना सिंपल नहीं है. सपोज सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड है आपके पास, तो यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिकल था. देखो यहाँ पे ग्रुप सब सेम है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप सेम है. सो यहाँ डबल बॉन्ड बनाना मुश्किल नहीं था क्योंकि आपके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ से निकालोगे. बट सपोज आपको मैं ऐसा एक मॉलिक्यूल दूं जहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, जो कि एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तब क्या करोगे आप, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी एक बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी. सो 2 पॉसिबिलिटीज़ है. जो मेरा बेस है 2 पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल सकता है, करेक्ट. एक बीटा 1 पोजीशन से जो मुझे 2 ब्यूटीन देगा, एक बीटा 2 पोजीशन से जो मुझे 1 ब्यूटीन देगा, करेक्ट. So I will get 2 products if there is 2 possibility of removal of beta hydrogen, and these 2 products are different क्योंकि ये है 2 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन. So कौन सा ब्यूटीन सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका वर्ड का आंसर है ये. जो कार्बन को सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन को सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, वो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहता है. सपोज मेरे पास ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको 4 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो ये सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है. उसके बाद एक डबल बॉन्ड कार्बन है जिसको सिर्फ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 2 3, तो वो उसके बाद सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है. किसी डबल बॉन्ड कार्बन को 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो नेक्स्ट. और सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड होता है वो कार्बन जिसको अल्काइल ग्रुप ही अटैच नहीं होता. सो दिस इज द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड. तो इसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड. जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उतना ज़्यादा वो आपका अल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होगा और उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा. सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 और 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, करेक्ट. तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, बल्कि 1 ब्यूटीन में आप ध्यान से देखोगे तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन को सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है. यहाँ पे 2 मिथिल करके 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे इथिल करके सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप अटैच है. सो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हुआ, ये. सो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ये बनाएगा. जितना ज़्यादा वो ओलेफिन सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उतना स्टेबल वो प्रोडक्ट बनाएगा. So 2-butene is the more stable product and it is the major product, while 1-butene is less stable product and it is the minor product. जो major product है, जो more substituted olefin बना रहा है, और वो ज़्यादा preferred product है, क्योंकि in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms. So इस doubly bonded carbon atom में 2 alkyl group attach है, इसलिए ये ज़्यादा substituted है, इसमें एक ही attach है, so it is a less substituted one. So these 2 products are called by some name. So the more substituted product is called as Sedgwick product. Okay, इसका नाम आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं Sedgwick product. और लेस सब्स्टिट्यूटेड है उसको क्या बोलेंगे, हॉफमन प्रोडक्ट. सो एक हुआ सेडजेफ प्रोडक्ट, द अदर हुआ हॉफमन प्रोडक्ट. क्योंकि ये प्रोडक्ट को सेडजेफ साइंटिस्ट ने फाइंड किया था इसलिए सेडजेफ, इस प्रोडक्ट को हॉफमन साइंटिस्ट ने फाइंड किया था इसलिए हॉफमन. सो व्हाट इज सेडजेफ एलिमिनेशन? सो सेडजेफ एलिमिनेशन इज सेइंग दैट द एलिमिनेशन रिएक्शन विल ऑलवेज बी प्रिफर्ड बाय फॉर्मिंग मोर हाईली स्टेबलाइज्ड अल्कीन. और कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबलाइज है, जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या जिसमें सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है. जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा डबल बॉन्डेड कार्बन को,
वो ऑलिफिन उतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, और जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसलिए जब मेरे पास ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, मेरे पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन इज देयर, सो द बेस विल ऑलवेज ट्राई टू abstract that beta hydrogen which will form more substituted और highly stabilized alkene। तो बेस हमेशा किसको abstract करने की कोशिश करेगा, कौन से बीटा हाइड्रोजन को, इस केस में भी वो इस बीटा हाइड्रोजन को abstract करने की कोशिश करेगा, इस वाले को, क्योंकि इसको abstract करने के बाद जो ऑलिफिन बन रहा है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है और वो ज़्यादा स्टेबल है, ना कि इसको। ठीक है, सो दिस इज द सेट-सेफ रूल। तो इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स क्या है, सो दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर 4 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, देन D3, then D2, okay, then this is also similarly equivalent stable because this is also 2, and then the 1 and the least stable is this alkene where there is no alkyl group attached. So ये MCQ में पूछते हैं which is the most stable alkene or which alkene will be formed as the major product by set-safe rule. So which one? Of course the fourth one, this one, the where there is 4 alkyl group present to the double bonded carbon. Now we move towards the elimination versus substitution. So हमने elimination reaction पढ़ लिया, हमने substitution reaction पढ़ लिया, अब हमें देखना है ये दोनों में competition है। देखो हमने elimination reaction में भी base यूज़ किया है, substitution में हम nucleophile यूज़ करते हैं। Now there is no much difference between the base and nucleophile, इसलिए elimination और substitution reaction में alkyl halide में हमेशा competition होता है, वहाँ पे हमेशा competition present होता है कि मेरा given alkyl halide elimination होगा कि उसमें substitution होगा। So ये depend करता है following factors पे। पहला factor nature of alkyl halide। alkyl halide किस टाइप का है, तो nature of alkyl halide means whether the alkyl halide is tertiary और secondary और primary। वो alkyl halide किस nature का है, tertiary है, secondary है, primary है। यदि वो tertiary alkyl halide है then it will prefer more elimination, and if it is primary it will prefer more substitution. So primary alkyl halides prefer more substitution but tertiary prefers more elimination. Why? Because tertiary alkyl halide crowded होता है, वो अपना क्राउड कम करने के लिए एलिमिनेशन प्रीफर करता है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, और वो ज़्यादा स्टेबल ऑलिफिन नहीं बना पाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल ऑलिफिन कौन सा बना पाता है, जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो, बट प्राइमरी वाले में नहीं होगा, इसलिए वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करेगा। सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ऑलवेज प्रीफर एलिमिनेशन while primary alkyl halides prefer substitution. Next factor is strength and size of nucleophile. Nucleophile जितना ज़्यादा strong रहेगा, so the more the strong the nucleophile is, it will always and always prefer substitution reaction. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग रहेगा और जितना ज़्यादा वीक बेस रहेगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है मतलब वो बेस वीक है। ठीक है, सपोज मेरे पास दो एग्जाम्पल है, वाटर और OH माइनस। ठीक है, तो दोनों भी बेसिक है, हाँ है, क्योंकि दोनों में भी लोन पेयर है। बेस मतलब क्या, जिसमें लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, उसे हम बेस बोलते हैं। हम पढ़ने वाले हैं वो आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में। ओके, सो जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है जो प्रोटॉन या H+ को अपने पास खींच सकता है, उसे हम बेसिक बोलते हैं, कि दोनों भी बेसिक है। बट इफ दिस इज मोर बेसिक, ओके, एंड दिस इज लेस बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसलिए यदि मैंने ये दोनों के सामने एक H+ रखा तो सबसे पहले ये अपना H+ ले लेगा, ना कि ये पीछे रह जाएगा, ज़्यादा जल्दी ये ले लेगा, इसलिए ज़्यादा बेसिक है। तो जो ज़्यादा बेसिक होता है वो हमेशा एलिमिनेशन फेवर करता है। ठीक है, और वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इफ़ इट इज़ मोर बेसिक इट इज़ लेस न्यूक्लियोफिलिक, और वो क्या प्रिफर करेगा, एलिमिनेशन।
बट जो लेस बेसिक है, जैसे वाटर इज लेस बेसिक, ठीक है, वो जल्दी H प्लस नहीं ले पा रहा है जितना जल्दी OH माइनस ले रहा है, तो ये लेस बेसिक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करेगा। वो क्या प्रीफर करेगा? सब्स्टिट्यूशन। सो OH माइनस करेगा इलिमिनेशन प्रीफर, वाटर करेगा सब्स्टिट्यूशन प्रीफर। ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन कंडीशन। कौन से रिएक्शन कंडीशन में मैं रिएक्शन कर रही हूँ? सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू while teaching substitution reaction that polar solvents always favor substitution reaction. polar solvent भले वो प्रोटिक है अप्रोटिक है, वो ज़्यादा क्या फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जो लेस पोलर सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या प्रेफर करेगा? इलिमिनेशन। सो लेस पोलर सॉल्वेंट और हाई टेम्परेचर भी आप इंक्रीज कर दोगे तो हमेशा इलिमिनेशन जल्दी होगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ते ही मॉलिक्यूल को बॉन्ड तोड़ने के लिए ताकत ज़्यादा मिल जाएगा, तो इलिमिनेशन ज़्यादा प्रेफर करेगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन। बट लो टेम्परेचर पे, हाई पोलर सॉल्वेंट पे वो क्या फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपके जनरल बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, सो इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हमेशा कॉम्पिटिशन होगा। नेचर ऑफ अल्काइल हाइड, टर्शरी अल्काइल हाइलाइड हमेशा इलिमिनेशन करेगा, प्राइमरी हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा इलिमिनेशन करेगा, वीक बेस हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेगा, और हाई टेम्परेचर हमेशा इलिमिनेशन करेगा, लो टेम्परेचर हमेशा सब्स्टिट्यूशन करेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अल्काइल हाइलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स द मेटल्स। कौन से मेटल्स? सोडियम, मैग्नीशियम और कैडमियम। इसके साथ अल्काइल हाइलाइड बहुत जल्दी रिएक्ट करता है टू कंबाइन विथ अल्काइल हाइलाइड, एंड दे गिव व्हाट दे कंबाइन विथ अल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड, और वो क्या बनाते हैं? कार्बन मेटल बॉन्ड। सो अल्काइल हाइलाइड कैन वेरी इजिली रिएक्ट विथ दिस मेटल। विच मेटल? दैट इज कैडमियम, सोडियम और मैग्नीशियम, और आपको देंगे वो कार्बन मेटल बॉन्ड। ओके, सो कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्म होता है, RM बॉन्ड। एंड दिस कंपाउंड, दिस RM बॉन्ड जहाँ पे भी कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल्स, सो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। And organometallic compounds play a very important role in organic synthesis. So the first reaction from this is reaction with magnesium. So alkyl halide को हम किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं अब? मैग्नीशियम के साथ। So when alkyl halide is treated with magnesium in the presence of dry ether, alkyl halide मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर में। ईथर को ड्राई कर दिया जाता है कोई मेटल के हेल्प से या कोई कंडीशन से जिससे उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ना रहे। ठीक है, और उसको हम लोग उस सॉल्वेंट में हम लोग मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड लेते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं और हमें देते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या फॉर्म हुआ? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड के बीच में R और X के बीच में घुस जाता है, और इसे फाइंड आउट किया था ग्रिडनार्ड्स ने, विक्टर ग्रेनार्ड्स ने। इसे नोबेल प्राइज मिला था इन्हें ये फाइंड आउट करने के लिए। सो वेन एवर ही फाउंड आउट दैट अराउंड 1912 ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। इट वॉज सच अ नाइस एलिमेंट एंड देन इट वॉज कॉल्ड एज ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट। ओके, सो एग्जाम में कभी कभी MCQ में आता है व्हाट इज ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट। सो ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट इज अल्काइल मैग्नीशियम halide which is formed by reacting alkyl halide plus magnesium in dry ether. Now this Grignard's reagent is very reactive compound. वो बहुत रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी वाटर या ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच है। मतलब ऑक्सीजन को अटैच हाइड्रोजन, या सल्फर को अटैच है हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन को अटैच है हाइड्रोजन। ये तीनों के साथ आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर पाएगा, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसके साथ बहुत इजीली रिएक्ट करेगा? जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच है। सो यू कैन सी हियर दैट द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैन रिएक्ट विथ अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करके आपको दे देगा अल्केन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है अमोनिया के साथ भी
to give you alkene. Okay, so Grignard's reagent is very reactive towards the compound where hydrogen is attached to electronegative atom. Next is Bruch's reaction. Now what is Bruch's reaction? इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मेटेलिक सोडियम के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड और सोडियम रिएक्ट करते हैं और वो क्या देते हैं? अल्केन. अगेन दे गिव अल्केन. बट दिस अल्केन्स आर हायर इन नंबर देन दिस, एक्चुअली डबल ऑफ दिस. क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे आपको 2 इन नंबर यूज करना पड़ेगा. ओके, और फिर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा अल्केन, जिसमें ये दोनों भी अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे. दैट इज डबल द नंबर ऑफ द गिवन अल्काइल हैलाइड और बन जाएगा 2NaX. एंड दिस रिएक्शन ऑफ फॉर्मिंग द alkane from alkyl halide is called as Bruch's reaction. So here is the example where ethyl bromide reacted with metallic sodium in the presence of dry ether which end up to give butane. So ethyl bromide में ethane होता है, correct? 2 carbon. So 2 plus 2 carbon makes 4 carbon. That is you get butane. That is the double of your alkyl halide. And you end up with 2NaBr. So this is Bruch's reaction. You have even studied it in 11th standard. Correct? Next, if you use mixture of alkyl halide, ये तो मैंने सेम अल्काइल हैलाइड्स यूज किए थे यहाँ पे, करेक्ट? यहाँ पे सेम अल्काइल हैलाइड यूज किए तो मुझे डबल नंबर का अल्केन मिला. बट यदि मैं मिक्सचर यूज करूंगी अल्काइल हैलाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक सोडियम एंड ड्राई ईथर, देन आई विल गेट 3 प्रोडक्ट्स. यहाँ पे तो कितने मिल रहे थे मुझे? सिर्फ 1. पर जब मैं मिक्सचर यूज करूंगी तब 3. क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट कंडीशन में 2CH3Br सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो एक कार्बन CH3 का, नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट CH3 का बन जाएगा ईथेन. सेकेंड कंडीशन में 2H5Br सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, करेक्ट? सेकेंड कंडीशन में 2C2H5Br सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 कार्बन इसका, 2 कार्बन नेक्स्ट वाले इथिल का, तो बन जाएगा ब्यूटेन. और थर्ड कंडीशन में ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं तो एक कार्बन CH3 का, 2 कार्बन C2H5 का, तो बन जाएगा प्रोपेन. सो फर्स्ट दिस 2 कैन रिएक्ट, सेकेंड दिस 2 कैन रिएक्ट, and in third both can react with each other to give you this. So this is how if you use mixture of alkyl halides there are always 3 possibilities of product, but if you use only a single type of alkyl halide you will get only 1 product. So this was the Bruch's reaction. And that's all for today. Thank you. If you have any kind of doubt, any suggestion, you can do that, ask that and suggest me on askyourdoubts04@gmail.com. Even in the comment box also you can ask. I can provide you the notes. You can personally mail me or write down in the comment box. You will get the notes. So that's all for today. Thank you. Share this video to more and more of your friends so that I can make better videos for you. And thank you. The thought for the day is don't make excuses. Make always improvements, because excuses are 100 in numbers, correct? So you need to make improvements, not excuses. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.